لجپال ریاض گوہر شاہ ریاض گوہر شاہ دیوانو دیوانو آؤ دیوانو آؤ دیوانو آؤ دیوانو مل کے کرے مرشد کی قصیدہ خوانی یا سخی لجپال ریاض گوہر شاہ ریاض گوہر شاہ. سارے ذاکر ہیں یہ نئے بھی ہیں. تشریح کی دعا وشو شہر عبرت تم اچھا اچھا تھوڑا اپنے آنے کا مقصد بتا دوں. پہلی دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا. مقصد تو صرف یہ ہے کہ سرکار کا دیدار کرنا. نہیں میں اپنا مقصد بتاؤں گا. ہاں میں پہلے یہاں آ چکا, کئی ممالک میں بھی جا چکا. میں ناروے میں گیا, وہاں علماء میرے گرد ہو گئے. یہاں بیعت کے لیے آیا, میں تجھے کوئی پیسے کی ضرورت ہے, نگرانی کے لیے آیا کہ نہیں, کچھ سیاست کے لیے آیا کہ نہیں, تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں, پھر کیوں آیا؟ مقصد بتا آنے کا, وہ تو مقصد ہوگا تیرا. اللہ رسول کا حکم کہنے ہمیں اللہ رسول کا حکم دے, نے کہا ہم وہ دکھانے کے لیے تیار. اس کے لیے ہمیں 5-7 دن چاہیے. ہم تم کو وہ ایسا اسم بتاتے ہیں جو تم کر ہی نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اگر تمہارا 5-7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو جائے, اس کا حکم تھا ہی نا, اس کا حکم تھا نا. یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے, ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے سب کے لیے, اور اس وقت کے لیے حکم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار, جس وقت کا انتظار تھا. اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذاہب سے بیزار ہے, یقین کرو. عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے, آلے اس نے خود بنا کے بھیجا ہے. انجیل بھیجی ہے, توریت بھیجی ہے, لیکن توریت والوں سے بھی بیزار ہے. زبور بھیجی ہے, زبور والوں سے بھیجا ہے. قرآن بھیجا ہے, قرآن والوں سے بھی بیزار ہے. اللہ بیزار ہے نا. قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن اس قرآن سے 72 ٹکڑے ہو گئے نا, اسی قرآن سے ہوئے نا. سارے والے قرآن ہے نا, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا. پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا نا. یہ سارے مذہبی, اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہے, ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح ہو. اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہو, تجھے منافق کہتا, تو صحیح کون ہے پھر؟ وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی, وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا تھا. جس علم سے وہ لوگ خواجہ صاحب بنے اور داتا صاحب بنے. اللہ, وہ عام کے لیے نہیں تھا, صرف انہی لوگوں کے لیے تھا, اور جن کو دیتا تھا وہ خواجہ داتا ہو گئے. اب وہ علم, اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا.
اب وہی علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اللہ اگر سارے ہی خواجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت تو ہو ہی گئی نا. اب تم سنی شیعہ وہابی سب کچھ بنے ہوئے نا, تو خواجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی, ولی اللہ, اللہ کے دوست. اب وہ علم کیا ہے؟ وہ ان سب علموں سے بالا تر علم ہے. قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں, ولی نہیں بن سکتے. آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, تو مومن بن سکتے ہیں نا, ولی تو نہیں بن سکتے نا. لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سالوں میں اگر آپ اس کو حاصل کریں تو آپ ولی بن سکتے ہیں, آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں. کہ جہاں عشق پہنچاوے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کوئی نہیں. اب چونکہ وہ علم سب مذاہب کے لیے ہے, سب فرقوں کے لیے ہے, وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے, ہر فرقے والے کے لیے, ہر مذہب والے کے لیے. اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا, یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہابی ہے, یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے, کوئی بھی ہے. وہ علم عشق ہے. اب وہ عشق سیکھا کیسے جاتا ہے؟ یہ جو تمہارا علم ہے نا, یہ اور علم ہے, وہ علم اور ہے. اس کے اوپر کسی فرقے والے کو اعتراض بھی کو نہیں ہے. اس کے لیے ہر فرقے والا, ہر مذہب والا اللہ کو تو مانتا ہے نا. آگے اس کے طریقے, کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کعبے کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں نا. اس کا اصلی نام جو ہے وہ اللہ ہے. 99 نام ہے, 98 صفاتی ہیں, ایک نام اس کا ذاتی ہے. ذاتی نام اس کا اللہ ہے. سریانی میں اللہ ہے. انگریزوں نے گاڈ گایا ہے, فارسی میں خدا کہا ہے, کسی نے رب کہا ہے, کسی نے رحمان کہا ہے. نام اس کا اللہ ہے. اب ہم اس اللہ کو پکڑتے ہیں, گاڈ واڈ کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اس کا اصلی نام ہے اس کو پکڑتے ہیں. اب اس نام کو ہم دن رات پکارتے رہے نا, حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نام ہمارے اندر نہیں جائے گا. ہمیں نیوی کا ایک کیپٹن ملا, کہنے لگا میں 5-6 سال سے اللہ کاغذ پہ لکھتا ہوں, لکھ لکھے ڈھیروں کے صاحب میں نے لکھا, تو پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے سمندر میں ڈال دیا. کہنے لگا مجھے اللہ تو نہیں ملا. بھائی تو نے سمندر میں ڈالا نا, وہ دل میں ڈالتا اس کو. تو کہنے لگا کیا میں اس کو کھا جاتا, اتنے کاغذ کے نہیں کھاتا. اس کا طریقہ ہے دل میں اتارنے کا. سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے, پھر اس آدمی کے گھر پہنچا جاتا ہے. اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو اس گھر کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اللہ کے نام کو اندر بسایا جاتا ہے. کیسے بساتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ, 66 جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے. 66 مرتبہ کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. دن میں بھلے کئی بار لکھیں, کوئی شرط نہیں ہے, لیکن جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں نا, وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا نا, آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا نا. جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر لکھنا بند کر دیتے ہیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں نا. پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا نا, پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے نا. جب پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا, اللہ والا. اس کے بعد ایک تمہاری تسبیح ہے, ایک اندر دل کی تسبیح ہے. یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے, وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے. وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے, جب وہ اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے. ٹک 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 ٹک, اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے, لوہا لوہے سے رگڑا کھاتا ہے,
पत्थर पत्थर से रगड़ा खाता है, चिंगारी उठती है। अल्लाह अल्लाह से रगड़ा खाता तो नूर बनता है ना। वो तो नूर बाहर बना रहा है ना, उंगलियों में, अंदर तो नहीं है ना। अब जो अंदर टिक टिक उसके साथ अल्लाह शुरू हुआ है ना, तो वो जो नूर बना है ना, तो वो सीधा खून में गया ना। यहाँ मजहब की बात नहीं है, फिरके की बात नहीं है ना, अल्लाह को अंदर बसाने और इश्क की बात है। अब जब रगड़ा लगा, अल्लाह लगा, दूध दूध है, रगड़ा लगता है, मक्खन बनता है। यही बात है ना, जिक्र जिक्र ही है, इबादत है, रूहानियत नहीं है। लेकिन जब रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। अब वो नूर जो है ना इस खून में चला जाता है, ये खून में नहीं जाता है। वो जो तुम्हारे अंदर अल्लाह हो रही है दिल की धड़कन के साथ, धड़कन का तल्लुक ही खून से है ना, वो नूर खून में चला जाता है। खून से होता हुआ नसों में चला जाता है, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूह तो अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना, उंगलियों में तो नहीं है ना, तुम्हारी नसों में ना। नसों से होता हुआ वो नूर अल्लाह अल्लाह तुम्हारी रूह तक चला जाता है। जब रूह तक जाता है तो रूह बेदार हो जाती है, वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। अल्लाह, जब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है फिर तुम सोते रहोगे ना, वो अपनी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना। कब्र में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना, यौम महशर में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना। जो यहाँ आंधे वो वहाँ आंधे। अब कुछ अरसे बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी मखलूकें हैं, तुम एक दो से वाक़िफ़ हो, 16 मखलूक हैं। इस तुम्हारे अंदर 16 मखलूकें हैं, उनके अपने अपने काम हैं। और जब वो मखलूकें ख़त्म निकल जाती हैं तुम मर जाते हो। इसका मतलब है तुम कुछ नहीं हो ना, जो कुछ हो मखलूकें हैं ना। भाई तुम्हारा जिस्म फिर बॉडी है ना, मकान है ना, वो निकल गई, ख़त्म हो गया। उनको सहस हवा से खमसा बोलती है। हवा से खमसा कोई चीज़ है ना, जिससे जिन फरिश्ते इस तरह हुए, कोई देखने के काम आता है, कोई सूंघने के, हर किसी अपने, कोई चलने के, कोई अल्लाह अल्लाह करने के लिए। कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर बैठी हुई है ना। फिर एक चीज़ है तुम्हारी, उसका नाम नफ्स है, वो एक शैतानी चीज़ है। क्योंकि बच्चा बचपन से शैतान होता है और शैतानी खुराक उसको मिलती है, वो थोड़ा सा ताकत पकड़ती है, वो ख्वाब में बाहर निकलती है तुम्हारी शक्ल में। देखा होगा ना, शैतानी ताकत के जरिए ख्वाब में बाहर निकलती है, यही शैतानों में घूम के वापस आ जाती है। तो तुम्हारा नफ्स है। अब जो दूसरी चीज़ है, उसको जब नूर मिला ना, तो नूरी ताकत से बाहर निकली ना वो, उसमें ताकत है, नूरी ताकत से निकली ना बाहर, तो फिर नूरियों में जाएगी ना, यहाँ से निकलेगी सीधी नूरियों में जाएगी, तो फिर उसी के आगे जाके झुकेगी ना, जिसके आगे सारे नबी और वली झुकते हैं। अल्लाह, तो फिर बेमज़हब कैसा हुआ? फिर तो देख लेगा जाके कि किसका मर्तबा ज़्यादा है। उसके बाद फिर जब तुम्हारे दिल में हर वक्त अल्लाह 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 होगी, कोई भी चीज़ दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। कोई भी चीज़, हाँ दुनियावी हो या दीनी हो, हाँ वली अल्लाह हो या हाँ कोई औरत हो, कोई भी चीज़ दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह दिल में आ गया तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, फिर अल्लाह से मोहब्बत होगी ना। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, उसको पता लग जाता है ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, वो किसी का एहसान लेता नहीं है। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देगा। भी एहसान माने तो क्यों नोट पे फालतू दे, एक नेकी करो 10 नेकियों का सवाब देगा, थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करेगा। तो जिससे अल्लाह ने मोहब्बत कर ली, पर एक दिन उसको देखता है, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। और जिसने अल्लाह ने तुम्हें प्यार से देख लिया, वो मोहब्बत खत्म होगी, फिर इश्क का मकाम है ना, तो मैं तेरा और तू मेरा। उस वक्त अगर तेरे दिल में अल्लाह का इश्क आए, उस वक्त इल्मा इकबाल ने फरमाया, गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। भाई अगर कुफर है, अगर उसमें इश्क आ गया, वो भी मुसलमानी है ना। अगर इश्क नहीं है तो मुसलमान भी एक दूसरे को काफिर ज़िंदगी की कह रहे हैं ना। उस वक्त अगर तू बेमज़हब है, फिर भी इन मज़हब वालों से बेहतर है जिनमें अल्लाह का इश्क नहीं है। अल्लाह नहीं समझे? इस वक्त ज़रूरत है कि तुम अपने अंदर इश्क पैदा करो, और वो जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं। अब ये जो वली अल्लाह हैं, कब्रों में क्या है? कहते हैं लोग कब्रों में क्या है, ठीक है, जिस्म उनका मिट्टी में, इसमें शक नहीं है, रूह उनकी ऊपर है, लेकिन वो जो इमदादी चीज़ें थी, बाकी मखलूकें थी,
तो उनको उन्होंने इतनी ताकत पहुंचाई ना कि वो कब्रों में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, नमाजें पढ़ी है, लोगों को फैज पहुंचा रही है ना। आम आदमी उनको ताकत नहीं पहुंचाता है तो कब्रों में जाया हो जाती है ना। वो हिंदू लोग, जादूगर लोग उनको उन नारी ताकत पहुंचाते हैं, उन नारी ताकत से ताकत वो पकड़ के तो शैतानों के साथ मिल जाती है ना, उनको बदरू में कहती है ना। तुम्हारे अंदर तो ये बहुत बड़े खजाने हैं ना, अब इनको बाहर निकालो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम एक जगह उलझे हुए हो ना। तो हमको उलझाया किसने? हमारे उलमा ने उलझाया हुआ है। ये तुम उलमा के सामने बात करो, मानेगा नहीं। ये कहते हैं ना हदीस की बात ना कुरान की बात, ये कहता है ना, इसमें शक नहीं, ना हदीस में ना कुरान में, ये हजूर पाक के सीने मुबारक है। वो सीना जो खास के लिए था वो सीना आम के लिए होगा ना, कि जिसको जी चाहे अपनी किस्मत आजमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रत अली फरमाते हैं तेरे अंदर एक जहान बंदा है तुझे इसकी खबर नहीं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर क्या है और कहाँ का इन तक इनको पहुंचना है, यकीन करो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लग जाओ। है तुम्हें बच्चों के लिए कर रहे हो ना, ये तो नकल है, ये तुम्हारे किस काम आएंगे? कुरान में है कि जब सूर फूंका जाएगा ये नस्ल दर नस्ल, रहम दर रहम सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, है ना। फिर ये तुम्हारे किस काम आएंगे? ये औरतों के लिए कर रहे हैं, ये तुम्हारे किस काम आएंगे? तुम्हारे लिए आगे तो हो रहे हैं, अगर जन्नत मिली तो। ये जो तुम मकान वाला बना रहे हो ये सब नकल है, उधर तो सोने चांदी के महलात हैं। तब तुम खुद भी नकल हो, असल तुम्हारे अंदर है ना। अल्लाह, जिस तरह तुम्हारा जिस्म यहाँ रह गया इस तरह तुम्हारी सारी चीजें यहाँ रह गई ना। वो असल ऊपर जाएगा ना, असल के लिए ढूंढो ना, फिर तुम्हारा असल उधर जाएगा ना। वो तुम्हारा मोहताज है ना, उसको ग़िज़ा चाहिए, वो तुम्हारे अंदर बंद है, उनको 7 ताले लगे हुए हैं। शरीयत में तुमने सुना होगा हफ्ता कल के 7 ताले लगे हुए हैं, पर शरीयत के जरिए कोई किस सूरत से कोई किस सूरत से उन तालों को खोलने की कोशिश करता है। तो तरीक़त वाले क्या करते हैं कि वो ज़रबें लगाते हैं, अल्लाहू अल्लाहू, वो ज़रबों से ताले खोलते हैं ना। फिर जब वो ताले खोलते हैं उनमें फिर मखलूकें निकलती हैं। जब मखलूकें निकलती हैं फिर उनको जिक्र सिखाते हैं, फिर अपना अपना जिक्र करती हैं। फिर उनका मकाम है, किसी का तल्लक, ये जो तुम्हारी शैतानी चीज़ है इसका तल्लक इसी दुनिया से है, ये नासूद में घूम सकती है। वो जो कलब वाली मखलूक है उसका तल्लक मलकूत से है, वो वहाँ जाके घूम सकती है, वो जबरूत व रूह वाली जबरूत तक चली जाती है, और ये मखलूक वहाँ चली जाती है, यहाँ अल्लाह की ज़ात है। ये तुम्हारे अंदर मखलूक है, और तुम वो सुन्नी शिया वहबी इसी चक्कर में लग गए ना। तुम कुरान पढ़ते हो, नमाजें पढ़ते हो ना, तो कुरान ने नहीं कहा तू नमाज पढ़। किसी जगह तो सबूत दे सकते हो, कुरान में लिखा नमाज पढ़, कुरान में लिखा नमाज कायम कर। फर्क है, पढ़ने क्यों नहीं कहा, पढ़, कायम का कहा। तू जब नमाज पढ़ता था उसको अपने आप को मोमिन समझता था, तो मोमिन समझता रहे खड़ा हुआ मैं बहुत अल्लाह के करीब हूँ, मोमिन समझ। लेकिन जब नमाज छोड़ा फिर वही हेरा फेरी, यही बात है ना। नहीं, नमाज तेरे अंदर जाए, कायम हो जाए, फिर तुझे नमाज पढ़ के फारग हो, फिर भी तेरे अंदर नमाज, तू मोमिन समझ, मोमिन तो सदा सुहागन। अब वो नमाज अंदर कैसे जाती है? कुरान मजीद पढ़ते हैं, ये इस तरह है जिस तरह ये एक बोतल है दवाई की, सब देख लिया तरकीब कैसी है, किस किस काम में ये शफा देती है, सब सारा उसका पता है, लेकिन वो मैदे में जाएगी तो शफा पहुंचाएगी ना। इसी तरह कुरान पढ़ा ना तू, वो तेरे दिल में उतरेगा तब तुझे शफा होगी ना। वो तेरे दिल में तो उतरता ही नहीं है, दिल तो अंदर गंद भरा पड़ा। जब तक अंदर मन साफ नहीं होगा वो तेरे दिल में नूर नहीं जाएगा ना, ये नूर अंदर ही नहीं जाएगा ना। उसके लिए सबसे पहले इसको नूर बनाना पड़ता है ना। अल्लाह अल्लाह के जब इसमें नूर आता है ये मैग्नेट हो जाता है, छोटी छोटी सुइयां फेंको मैग्नेट खींच लेगा ना। जब तुम्हारे अंदर ये नूर आ जाएगा
پھر تم قرآن پڑھو گے تو اس کا نور اندر, نماز پڑھو گے تو اس کا نور اندر, اس کے اندر جائے گا نا. اب تو اندر نہیں جائے, اندر جائے تو یہ شفا ہوگا نا. اور جن لوگوں کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے دوست ہو گئے. اگر عالم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اس کو پھر کہتے ہیں قہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. تیرا شاہی میں دین نبی کا سچا دائی. قہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن ہے. قرآن اس کے اندر چلا گیا. اب جس طرح قرآن کی تعظیم کرتا اس طرح تو اس عالم کی تعظیم کر, کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے. کیوں جی؟ ہاں, وہ تو کوئی عالم ہوتے ہیں بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں نا. اس کے بعد دوسرے عالم ہیں وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں, اندر جاتا نہیں, ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں بیچارے, اندر جاتے نہیں, شفاعت ان کو ہوتی نہیں. مولوی کے مولوی رہے نا ساری عمر, ہے نا ایسے. ہاں, اور تیسرے انہوں نے کیا دیکھا, قرآن پڑھ کے اندر تو جاتا نہیں, انہوں نے پھر قرآن کو بغل میں ڈال دیا. اب قرآن کی آڑ میں وہ سیاست کرنا شروع ہو گئے, ہے نا ایسے. وہ بہتر ہے جو خود پڑھ رہا ہے نا, اور اس نے ساتھ کتنے نوجوان اکٹھے کر لیے, چلو سیاست, یہ حضور پاک نے سیاست کری تھی, چلو ہم بھی سیاست کرتے. اب ان کی زندگی خراب کر دی نا. اگر یہ 4-5 سال اس کے ساتھ سیاست میں لگ گئے, اگر سیٹ ملی, پہلی بات ان کو سیٹ ملتی کو نہیں ہے. اگر مل بھی گئی تو مولوی صاحب کو ملی ہے. یہ 4-5 سال جو ان کے ساتھ لگے, اس کا کیا ہوا؟ بیکار. اگر وہ صرف اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے, صرف اللہ علیہ 4-5 سال کرتے رہتے, ہو سکتا ہے 4-5 سال میں ان کا دل منور ہو جاتا. کیوں جی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اب سیاست کا زمانہ نہیں, اب روحانیت کا زمانہ ہے. اب کرسی کی ضرورت نہیں, اب اللہ کی ضرورت ہے. اللہ جو ملتا ہے نا ان دلوں سے ملتا ہے. تم ان دلوں سے بہت ہی دور ہو. جب تم دور ہو تو اللہ تم سے دور ہے. اس وقت فرقہ بندی بھی چھوڑو, مذاہب کو چھوڑو, اپنے دل میں اللہ کو بساؤ. اس کے لیے ہم کوئی بیعت وغیرہ نہیں کرنے آئے, نہیں بیعت کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا, کہتے ہیں سلسلے والے لوگ. ٹھیک ہے, پیسوں کے بغیر عام نہیں آتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن اگر وہ ٹوکرا چھوڑ جائے تو کسی کی مہربانی ہوگی نا. میرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. ہم مانتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا. اگر بیعت کے بغیر ہی تیرا دل اللہ میں لگ گیا تو تیرے پر بہت بڑا کسی کا کرم ہو گیا نا. اللہ, کیوں جی؟ پھر یا حضور پاک کی نظر ہوئی تو یہ اللہ کی نظر ہوئی, یا پھر غوث پاک کی نظر ہے. ان کے بغیر تیرا دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتا. اللہ, اس لیے کوئی کسی بھی سلسلے سے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے اس کو چن لیا, پھر اگر کہیں بیعت نہیں ہے تب بھی خیر ہے نا. اللہ, مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا, شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا. تو اس کے لیے اگر چاہو تو اس کی اجازت لے لو. اجازت کا یہ اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد تمہاری قسمت. اس لیے کوئی بات پوچھنی چاہے کوئی پوچھ لیں جو میں نے بات کری ہے. کسی بھائی کے دل میں کوئی سوال ہو تو بس کر سکتے ہیں دربار کی بارگاہ میں, اس کے بعد اجازت ذکر حاصل ہو. اجازت بتا دیں جی, اجازت دے دیں. حضرت ایک میں سائل کو لایا ہوں, ان کے بچے کا بیمار ہے اسپتال میں, تو پورے 1 مہینے سے آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں. اب 2 دن تو آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ابھی میں لے کے آیا ہوں ان کو. میں بھی وہی تھا, ابھی تھوڑی دیر بیٹھے نا, ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو ختم کر لینا پہلے. اس دفعہ تم خاموش ہو پڑے.
मोहम्मद बने हुए हो। तुम्हें तो मैंने कहा कुछ बोलो। पूछ लें, दिल की तसल्ली कर लें अगर किसी को पूछना हो तो। मेरा तबीयत भी ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मुझे इजाज़त है जी। हाँ जी, मैं इनसे ज़्यादा मुहिम हूँ, मैं बात करता हूँ। हाँ बताएं। पूछते वहाँ है जहाँ कोई शक हो। ये सारे जो आए हैं बगैर शक के बैठे आप। पूछा वहाँ जाता है जहाँ दिल में कोई चीज़ की ऐसी हो। अब फिर इसका थोड़ा सा तरीके की वजाहत कर दूँ ना। बैठा है, ये सारे आपके मिलने वाले और आपको इंतजार में जो है महीना गुजरा जो कुछ ऐसा, इनके दिलों में कोई शक नहीं है। ये तो आपके पास आपसे सुनने आए हैं। अब थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दूँ तरीके की, जो इसका तरीका है। वो तो जो तस्वर का बताया ना लिखने वाला, उसके बाद जब रात को सोने लगें, उंगली को कलम ख्याल करें, तस्वर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाएं, इसी में नींद आ जाए। रात को सोते वक्त जो नीयत होती है ना, ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह होता रहा। सुबह उठे, वुज़ू है या नहीं, दिल का वुज़ू पानी से नहीं होता है। जिक्र खफी करते रहें। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कन ने पुकारा अल्लाह, ये जिक्र कल्बी है। ये तरीकत में पहला कदम है। आज तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी, नहीं समझे? जब ये अल्लाह दिल करेगा ना तो तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी। जब ये अल्लाह की तरफ चल पड़ी, अब इस गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है। फिर ये तुम्हारी नमाजें रोज़े ये उसके पेट्रोल हैं। नमाजें पढ़ते जाओ और अल्लाह करते जाओ और तुम्हारी गाड़ी चलती जाएगी। तो एक दिन ये गाड़ी जो है ना सीधी वहीं जाकर गुजरेगी। उसको हकीकत बोलते हैं। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है। अब यहाँ क्या है कि लोग नमाज रोजे हैं, पेट्रोल है गाड़ी नहीं है। पेट्रोल है ना गाड़ी नहीं है, और जिनके पास गाड़ी है थोड़ी बहुत, उनके पास पेट्रोल को नहीं है। वो दोनों रुके हुए हैं ना। अब पेट्रोल वाले पे क्या करते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, गाड़ी को नहीं आपस में टकराते हैं ना, तो सुन्नी सी हवा भी बन गए ना, एक दूसरे को आगे लगा रहे हैं ना। अगर गाड़ी ये भी गाड़ी चला रहा, वो भी गाड़ी चला रहा, तो इनको अपनी फुर्सत नहीं होगी ना कि जल्दी जल्दी मंजिल पे पहुंचूं। क्यों जी? ये फारग है ना। तो ये तरीकत इसको बोलते हैं, या भी दिल अल्लाह में लगता है, इसको तरीकत बोलते हैं। और जब अल्लाह को देखता है उसको हकीकत। ये मनाज़िल है। हदीस में है कि किसी मोमिन का किसी मकाम पर रुक जाना हराम है। अगर तू शरीयत में है तो आगे तरीकत में जाना, तरीकत में है तो हकीकत में जाना, हकीकत में तो और आगे जाना। किसी मकाम पे भी तुझे मौत आ गई, तेरा नाम शहीदों में होगा ना। क्योंकि अल्लाह को ढूंढते ढूंढते मरा ना। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे उनको मुर्दा मत को। अब एक तुम्हारी नमाज है, तुम्हारे अंदर है उसकी नमाज अंदर है ना, उसकी नमाज बड़े अरसे से है। तुम्हारी नमाज से पहले की नमाज एक शरीयत मोहम्मदी है, एक शरीयत अहमदी है। तुम्हें शरीयत अहमदी की खबर नहीं होगी, हो सकता कभी सुना हो या पढ़ा हो, सुना भी हो पढ़ा भी हो, लेकिन फिर भी यही कहा होगा कि यही शरीयत है। नहीं, शरीयत मोहम्मदी और है, शरीयत अहमदी और है। हजूर पाक का जो जिस्म मुबारक इस दुनिया में, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी जो रूह है उसका नाम अहमद है। आपका जो अख्फा वाली मखलूक है उसका नाम हामद है। आपकी यहाँ सिर वाली मखलूक है उसका नाम महमूद है। वो जो मकाम महमूद है इस मखलूक वाला है। अब ये जो जिस्म नमाज वाला पढ़ता है उनकी नकल करता है, ये शरीयत मोहम्मदी है। ये सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है, आगे नहीं। और शरीयत अहमदी क्या है? जब हजूर पाक शब महराज में गए थे, महराज में जाने से पहले आपने बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ाई थी। सब वलियों नबियों की रूहों को नमाज पढ़ाई थी। वो कौन सी शरीयत थी?
ऊपर गए तो आपको ये नमाज मिली ना, वो तो जाने से पहले आपने नमाज पढ़ाई थी ना। वो शरीयत अहमदी थी। पहले आपकी रूह नमाज पढ़ाया करती थी, अब रूह आपकी जिस्म में आ गई तो जिस्म को फिर नमाज पढ़नी पड़ी ना उनको, क्योंकि रूह जिस्म में बकैद हो गई ना, और जिस्म ने उनको नमाज पढ़ाई ना। वो उस शरीयत अहमदी के लिए अगर आपका अंदर तैयार हो जाए ना, इस दुनिया में आपकी ज़िंदगी में तैयार हो जाए ना, तो आपको वो नमाज मिल सकती है ना। अल्लाह। और वो नमाज 6000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम थे ना, उन्होंने भी नमाज पढ़ी थी ना। तो आपको अगर वो नमाज मिल जाए तो आप क़यामत तक वो नमाजें पढ़ते रहेंगे ना। मतलब वो नमाज ऐसी, उसमें हुजूर पाक नमाज पढ़ाते हैं, उस वक्त तक सर नहीं उठाते हैं जब तक अल्लाह जवाब ना दे, लब्बैक या अब्दी। अल्लाह, वो नमाज है ना, उसको नमाज हकीकत बोलते हैं ना। तो ये तुम्हारे अंदर चीजें हैं ना जो तुमको वहां तक पहुंचा सकती हैं ना। ये इल्म रूहानियत है। इसके लिए जो लोग जिक्र लेना चाहें ना, मेरी ज़ुबान के साथ 3 दफ़ा अल्लाह ऊपर है ना, उनको इजाज़त हो जाएगी। आगे करें या न करें उनकी मर्ज़ी है, इजाज़त तो ले लेना। आज ना करें, चलो चाबी तो पास रख लेना, और जब कभी ज़रूरत पड़ी चाबी लगा लेना। हो सकता है अभी तुमको तसल्ली ना हो, फिर भी चाबी रख लो ना, फिर जब कभी तसल्ली होगी तो फिर चाबी लगा लेना। क्यों जी? इजाज़त तो ले लो। पढ़ो जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस जी, बाकी अब शाम को बाकी बातें करेंगे जाके। ये हमारे भाई आए हैं सुहास से, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में कुछ। पहले कहीं दबा थे तो अब वो उनको छोड़ दिया तो घर वालों को परेशान कर रहे हैं। कौन है? पता है क्यों के थी वो, उनका नाम साइमन दूर है। जी साइमन दूर है। अच्छा, वो काला इल्म करते हैं, उसका लड़का भी काला इल्म करता है। काले इल्म वाले भी पीर होते हैं। देखो जी, पहले तो ना समझते तो उनके यहाँ जाते रहे, अब वो घर वालों को तंग कर रहे हैं। बच्चा बीमार है, वालिदा बीमार। घर वाले कहाँ हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस शहर में? हादसा मार गए। वो उनको बोले ना मेरा पता देना, नहीं काम करते हैं उधर, मतलब उनको मेरा पता देना, मिले ना मुझे। वो पाकिस्तान में रहता हूँ उन्होंने। हो जाएगा छुटकारा इंशाल्लाह। और जी ले उस बच्चे को क्या ये तो ज़बान नहीं जानते, मैं बता देता हूँ इनका बच्चा बीमार है जी। जी आगे लाए ना, आगे दोनों आगे आ जाए, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे चलो। आओ जी, वालेकुम सलाम, बैठो जी। हाँ बताएं। उनका बच्चा बीमार है। कहाँ है बच्चा? अस्पताल में। अच्छा, रॉयल अस्पताल में मैं अभी लेके आया हूँ इनको। उनसे वादा था 1.5 महीने का, मैं रहा था वहाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ तो वो मेरे सामने था। उससे 2.5 महीने हो गए हैं। 1 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर वो अभी उसका दिल फिर दोबारा उससे तकलीफ हो गया और अभी अस्पताल में है। तो ये यहाँ से बहुत दूर को 150-200 किलोमीटर से हैं। तो दोनों मियाँ भी अपने बच्चे अभी ऐसा करें ना, पानी दम करा कर ले जाए, थोड़ा सा पिलाएं। अच्छा वो पिलाने से पता चल जाएगा ना, थोड़ी सी शफा हो जाए, निकाल इधर ले आए इसको। आमीन आमीन। अकरम जी, पानी बड़ी मेहरबानी।
लाज पानी पिलाएं बच्चों को। हाँ जी पर अंदर खुद ही मरन वाला है। ये इशारे होंगे ने वो इंसान के अंदर मखलूका होंदियां ना तो किसी रिश्तेदार की शक्ल दिखाई जानियां ने कि थोड़ा अंदर जड़ा ना वो भी खत्म हो 16 मखलूक ने थोड़े अंदर। जिसले पकड़ दिए ना ताकत फिर ख्वाब आंदी है कि मैं ख्वाब उड़दा जा रहा हूँ किसी इस तरह है। कोई परेशानी का हाल नहीं इंसान को खुद दिखाया जाता मुर्दे दिखाए जाते नहीं कि तू ही मतलब है मुर्दा बनता जा रहे हैं तू। नहीं जो मैं इजाजत मिल रही है और कोई गल जी शमीम साहब जो है ये नोटिस मिल रहे हैं उनको मिनिस्ट्री की तरफ से जी मतलब ये आपके सामने शमीम साहब हाँ ये इनको नोटिस मिल रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से क्या वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। खैर ना रोजी और नहीं है वो लोग रोटी नहीं खाते जहाँ सरकार उनकी जगह ये उस्मान गनी साहब आपके सामने बैठे हैं अभी आपको मान उज्जत देते देखना मैं चाहता हूँ कि वहाँ जिक्र की नकल मेरे घर पे होती थी वहाँ और कोई नहीं है वो ज़रा इजाज़ शाह साहब हैं ये मियाँ वो जो जिनको इजाज़त है वो मेरा में इनका जिक्र चले था मोतमिन होना अभी तो जिक्र लिया ना मुझे अभी है 15 दिन है मैं यहाँ हूँ। इस लाइन को उस वक्त तक आदमी नहीं समझ सकता जब उसका कल्ब अपना न चलना शुरू हो। कल्ब चलता ना फिर हकीकत को पाता ना फिर हकीकत में जान भी देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि सबका कल्ब चल पड़े ये तो जिसको अल्लाह चाहता है। घुटनों में बहुत दर्द रहता है इस उम्र में रहते ही है जी। सब्र साथी तो सब चाहते थे कि मैं इधर ही में रहूँ इन लोगों के साथ। मेरा दिल भी चाहता है लेकिन खैर अल्लाह का जो हुक्म है ये तो चाहते हैं कि मैं जो महफिल मेरे घर में होती है वो चलती रहे। पाकिस्तान किस जगह है? कराची। कराची में। अच्छा बस जी ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा मुझसे दुआ करें चलेंगे या ले रहे हैं या ले रहे हैं या ले रहे हैं या ले इस धरती पे रहें या ले इनके सीनों पर रहें या ले इनकी दीनी दुनियावी मुश्किलात दूर इनकी ज़ाहरी बातें बीमारियाँ दूर اللهم انت السلام ومنك السلام ملائكة يرجوس حيانا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول يا رسول پا